Hello and welcome back to the Weekend Talks on Arunachal Mirror. So this week we have with us Mr. Kipa Kaha, who is the chairman of Arunachal Guild for Cultural Integration, to discuss on a letter submitted by him to Chief Secretary of Arunachal regarding the immediate verification of electronic media in the state. So while welcoming Kaha sir to Arunachal Mirror, I want to put my question straight to you कि आपने इस लेटर को चीफ सेक्रेटरी को क्यों लिखा? Actually, I have heard आज का दिन में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. मीडिया होना बहुत अच्छा बात है. We have recognized like Arunachal Mirror, Arunachal Today, Arunachal 24/7, Itanagar News, all this. ये बहुत अच्छा बात है. हम लोग बहुत साल से देख रहा है. I think Arunachal Mirror is completed 4 years now. Congratulate to you. हमने देखा है बहुत सारा पब्लिक से भी हमने सुना है. बहुत सारा सुना है. लेकिन इसमें आजकल का दिन में क्या हो गया? The people, local people and people of Arunachal is little bit confused. That's why I have wrote the letter to the Chief Secretary Government of Arunachal Pradesh on 15th July 2020. I have asked the Chief Secretary, please verify the electronic media. Please officially notify which is impaneled to the Department of IPR Government of Arunachal Pradesh for the convenience of the general public. I don't have against any electronic media. कोई इंडिविजुअल का ऊपर में किसी को ऊपर में मेरा कोई संकोच नहीं है. बस I just wanted to know which one is officially notified by the government of Arunachal Pradesh. That's all. I agree with you कि in the last few months we have also seen कि sudden surge of electronic media in the state. I mean to say digital media, and most of them are active on social media. And मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए DIPR के अंदर ऐसा कोई रजिस्ट्रार नहीं है. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या गवर्नमेंट ऐसा कुछ ऑफिस खुलना नहीं चाहिए? Yeah, it's a long back. It's very new for. Yeah. It's a long back. It's very new for Arunachal also. But at the moment, since last 4-5 years, we have seen because of the electronic media, the media pattern is totally changed in Arunachal Pradesh. That's why we are very happy. But that's why I asked the government of Arunachal Pradesh to constitute a committee to regulatory board of the impanel that's media, electronic media, maybe print media. उनको बनाना चाहिए. और नहीं होने से क्या ये लोग कंफ्यूज होगा. ऑफिशियली आज का दिन में इट्स अ very sensitive time because of the COVID-19. So a lot of people are giving a news in the online. कौन क्या दे रहा है, क्या है, सच है ना गलत है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. People of the state are a little bit confused. और हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब माइक लेके घूम रहा है. ये अच्छा बात है. वी आर इनकरेजिंग देम. हम लोग का जो अनएम्प्लॉय यूथ लोग को इस प्रकार का ये अच्छा काम है, समाज को सुधारने वाला काम है. इसको हम अप्रिशिएट करता है. मेरा इंटेंशन ये था कि चिट्ठी लिखना, चीफ सेक्रेटरी को लिखना, गवर्नमेंट को अपील करना ये था कि इसको इम्पैनल करेगा तो ऑफिशियली होता है. ऑफिशियली होने से गवर्नमेंट का जितना भी जो एडवर्टाइजमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, जो एडवर्टाइजमेंट है उन एजेंसी को जाना चाहिए, भले 1 रुपया हो या 2 रुपया. हाँ, वैसे आपने एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड बात किया है, बट लेकिन अभी तक अरुणाचल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी नहीं बनाया गया. डिस्पाइट लोग परस्यू कर रहे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सून कि ये पॉलिसी भी आएंगे. अभी बात रहा जैसे न्यूज़पेपर के लिए RNI है, लोग RNI के थ्रू अप्लाई करते हैं, बट हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ऐसा कोई जगह ही नहीं है. बिकॉज मैंने जब अरुणाचल मिरर शुरू किया था, आई रन अ लॉट अराउंड द कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफिस कि ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू करने के लिए कहाँ क्या करना है. सो अनफॉर्चुनेटली हमको ऐसा ऑफिस मिला ही नहीं. देन आई ऑप्टेड फॉर केबल TV प्लेटफॉर्म, and today Arunachal Mirror is running as a cable TV media house in Capital Complex. क्या कहना चाहेंगे आप? Yeah, exactly. This is true. Since 2007-8, I was started one electronic media. That was Arunachal Today. It's name called AT News. We have struggled a lot. We didn't get a sponsorship. In that time, I was the owner because I have spent a lot of money. But we didn't ask the state government from financial aid. We have started. Nowadays, you see, because of this Google and Facebook, electronic media is doing well. I really appreciate that.
आई रियली अप्रिशिएट दैट। गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लेना चाहिए, इसको पॉलिसी लेके स्टेट का अंदर में एक पॉलिसी लेके बहुत सारा एक असेंबली में एक अमेंडमेंट बना के इसको पैनल करके ऑफिशियली नोटिफाई करना है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर का वजह गेजेटेड नोटिफिकेशन निकाल के एक पॉलिसी बना के इसमें आज का दिन में बहुत सारा हमारा भाई बहन मास कम्युनिकेशन पढ़ने वाला बहुत है, उनको भी एम्प्लॉय हो जाएगा। और हम चाहता है कि गवर्नमेंट एक अच्छे से पॉलिसी ले और ऑफिशियली नोटिफाई हो, और ऐसा ना हो कि ऑनलाइन का नाम पे और आपका कोई भी यूट्यूब चैनल खोल दिया, कोई भी न्यूज को वहां डाल दिया, people are having a lot of confused. That's why I approached the Chief Secretary of Arunachal Pradesh. Please look into the matter. Please verify the electronic media, which is official, which is non-official. Please rectify it. Which one is official news, which one is non-official news. That's why. अच्छा, अभी तक कुछ रेस्पॉन्स आया चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से? Now, I have got the mail from the Chief Secretary. Chief Secretary, I have received email reply from the Chief Secretary. They said they already received my letter. They will look after the matter. उनको मिल गया चिट्ठी, उन्होंने रिप्लाई भी दे दिया हमको। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन रीशेपिंग अरुणाचल मीडिया का तो बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था कि न्यूज़ देखने के लिए हम दूसरा दिन का सुबह को वेट करते थे, बट दिस डेज द डेज आर थिंग्स आर नॉट सेम। Yeah, exactly. This is change. It's absolutely changed. This is totally changed. Because हम लोग पहले प्रेस रिलीज देता था, नेक्स्ट डे में रुकता था, सुबह उठता था कब पेपर आएगा, और न्यूज भी इतना बना के दूसरा नेक्स्ट दिन में आता था। इसलिए आज का दिन में आई रियली अप्रिशिएट लेट तारो चातुंग जी। ही वाज द पर्सन हु स्टार्टेड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन द दूरदर्शन। लेट तारो चातुंग जी, ही स्टार्टेड द न्यूज एंड व्यूज इन डीडी न्यूज। आई रियली अप्रिशिएट, ही इज नॉट विद अस। आज के दिन में वो हमारा साथ नहीं है, लेकिन उनको हमेशा मिस करता हूँ न्यूज एंड व्यूज को। He is the person who started the electronic media. After that, I have associated them. I have started 80 news like Arunachal Today News. But we don't get a sponsorship and all. We have spent a lot of money, but we could हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया because हम लोग का पास उस समय में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि हम रिपोर्टर को पैसा देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ेगा, कैमरामैन इज देयर, एडिटर करने वाला को हम देना पड़ता है, बहुत सारा आपका लोग को इसमें बहुत फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट है। और बड़ा न्यूज चैनल खोलने के लिए इस रिक्वायर 25 to 30 करोड़। इट्स नॉट पॉसिबल। अरुणाचल में जो आप लोग जो अभी कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑनलाइन में, आप फेसबुक का माध्यम से, यूट्यूब का, इट्स गुड, बट इट शुड बी इन पैनल। दिस इज माय रिक्वेस्ट। यस, वो सही आप कह रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ऐसा, आई थिंक इन लास्ट मंथ्स और मंथ्स बैक देयर वर सम सेमिनार्स और डिबेट की दैट सोशल मीडिया इज रिप्लेसिंग मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया विल नेवर रिप्लेस द मेन स्ट्रीम कन्वेंशनल न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर अपने जगह एकदम इम्पोर्टेंट है, एंड हमारा क्या है कि ये विद इंटरनेट बिकमिंग चीप, with smartphone becoming cheap, and it has become very accessible for us. और ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया खोल दिया कुछ भी छाप दिया। We also do a lot of homework before we go online, before we publish a story. तो ये लोगों के ऊपर है कि कौन सा न्यूज़ या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया में जेन्युइन है। We cannot stop people from starting this online news portal, but it is कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि it is for the public to verify कि कौन सही है और कौन गलत है। See, electronic media cannot replace the print media. See, you are engineer. You cannot work the work of doctor. Okay, आप इंजीनियर है, आप डॉक्टर का काम नहीं कर सकता है। Like electronic media is a engineer, the print media is a doctor. Okay, online media is a like some maybe some different. वो उसका अपना अपना जगह में है, उसको कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। Justification is like that. कौन सा चैनल सही चीज दिखाता है, कौन सा चैनल अच्छा न्यूज दिखाता है, कौन ऐसा छाप रहा है, कौन अपना सच्चाई को छापता है, उस चीज को देखता है पब्लिक। ऐसा नहीं है, सब अपना अपना जगह में सही है। ऐसा भी प्रिंट मीडिया का जगह में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं ले सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप लोग जो कर रहा है
वो ऑनलाइन मीडिया आप रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज सी ऑनलाइन मीडिया में आपका ऑफिशियली ऑथेंटिक नहीं होता है, उसमें आप बोल के भी नहीं बोल सकता है आप, लेकिन एज ए न्यूज एजेंसी लाइक अरुणाचल मिरर, इफ यू पब्लिश द न्यूज, पीपल विल गो, इफ यू पब्लिश द फॉल्स न्यूज, विल गो फॉर द डिफेमेशन केस। आप फॉल्स न्यूज नहीं छाप सकता है मर्जी से, दिस इज द डिफरेंस थिंग। ओके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि लास्ट आई थिंक कुछ सप्ताह पहले कुछ आरजीयू में आई थिंक द मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैज ऑर्गेनाइज वन वेबिनार, जिसमें ये ऐसा डिस्कशन था कि सोशल मीडिया को भी लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर लाना है। अगर कोई गलत छापता है उसके ऊपर भी एक्शन लेना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन अरुणाचल, एक्चुअली वी आर डिजिटल मीडिया, हम सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं। तो वो डिस्कशन ऐसा था कि इवन द सोशल मीडिया शुड कम अंडर द परव्यू ऑफ लॉ। आपको क्या कहना है इसमें? नहीं, एक्चुअली सोशल मीडिया कैन नॉट बी कम अंडर प्रिव्यू ऑफ लॉ, उसका कानून अभी तक बना भी नहीं है। देखिए उसमें दिस इज सोशल मीडिया इज फेसबुक इज लाइक ए फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज तक जो आपका जो ओनर ने भी उसको माना नहीं है और उसका कानून है ही नहीं है। डिस्कशन करना वो अलग बात है। सोशल मीडिया में देखिए, अगर आपका किसी का बारे में हम इंडिविजुअल सोशल मीडिया में गलत फॉल्स कमेंट करता है, फॉल्स प्रोपेगेंडा करता है, दे विल फाइल अ डिफेमेशन केस इन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। आपने मेरे इमेज को टर्निश किया, वो केस फाइल करेगा। द सोशल मीडिया इज नथिंग टू डू विद द अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। डिस्कशन करना अलग बात है, वो दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री, एवरीबॉडी कैन कीप देयर ओन ओपिनियन, नथिंग इज टू लाइक दिस। Okay, apart from it, you have also submitted a letter to Chief Secretary as well as the CM regarding some vegetable market. Can you put some light on it? Yeah. It's, I have wrote one letter yesterday to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh. See, it's very interesting. This is my second letter to the government because due to the COVID-19 lockdown, some shopkeepers of the vegetable market and the non-vegetable market and the Galamal markets, they are taking advantage. They are selling the high price in the market because of lockdown. I have wrote a letter to the Chief Minister. I request the government, हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि वेजिटेबल मार्केट और नॉन वेजिटेबल मार्केट का आज तक इतना साल से हम देख रहा है, आज तक ऑफिशियली नोटिफाई मार्केट है ही नहीं है। कोई बिल्डिंग बना दिया, उसमें कोई बारह ले लिया, वो अपना सब्जी का दुकान डाल दिया, इस प्रकार का बने चीज है। इसलिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि एरिया वाइज में, लोकेशन में आपका वेजिटेबल मार्केट कहाँ में होगा, नॉन वेज का मार्केट कहाँ होगा, इसको गवर्नमेंट वेरीफाई करके, इतने भी प्राइवेट बिल्डिंग हो, वेरीफाई करके आप ऑफिशियली नोटिफाई करना है। और मेरा सजेशन गवर्नमेंट को ये भी था कि और आप जितना भी वेंडर्स है, वेजिटेबल नॉन वेजिटेबल जो वेंडर्स है, उनको ट्रेडिंग लाइसेंस कंपलसरी इशू करना है और उनसे उनको बोलना है, इट शुड बी क्लियर कट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, दे शुड बी इशू द मनी रिसीट, कैश मेमो। जब तक कैश मेमो नहीं होगा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट सबसे पहले, चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में या जो भी हो, आप ट्रेडिंग लाइसेंस वेजिटेबल नॉन वेजिटेबल वेंडर को आप इशू करना है, तब आप कार्रवाई कर पाएगा। अदरवाइज आप जब तक ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं देगा, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग। और मेरा नंबर 2 सजेशन ये था कि गवर्नमेंट को मार्केट स्पेसिफिक विद इन द कैपिटल रीजन, इट में भी ईटानगर, इट में भी नाहरलगुन, इट में भी निर्जली, इट में भी दुईमुख, स्पेसिफाई करना चाहिए वो लोकेशन में वो वेजिटेबल मार्केट है, वो नॉन वेजिटेबल मार्केट है। ऐसा होने से क्या होगा, हमारा जो बीमार जो होने वाला है वो कम होगा, और प्लस हमारा जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है वो भी कम होगा। जो आदमी अभी जो सब्जी बाजार जो लेजी कॉम्प्लेक्स में जाना था, वो तो नीति बिहार से होके जाने से तो गलत है, ट्रैफिक वहां जाम होगा। जो गंगा से खरीदना था वो आप चंदन नगर मार्केट में खरीदने से वो प्रॉब्लम होगा, ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम है। इसलिए गवर्नमेंट को हमने सजेशन किया है, आप इसका भी सॉल्यूशन निकालना है। और खास करके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका देखो ईटानगर, नाहरलगुन, इवन दुईमुख, यूपिया इंक्लूडिंग यूपिया न्योच, विद इन नेशनल हाईवे NH-15 में जहां तक दुकान खोला है, जो दुकान खोलने वाला का खिलाफ में हम नहीं है। हम भी चाहता है कि वो लोग जो दुकानदारी करता है वो अमीर बनने के लिए नहीं है, वो अपना परिवार चलाने के लिए दुकानदारी करता है। हमको पता है
इस चीज को भी गवर्नमेंट लाइसेंस देके कई सेफ्टी प्लेस में इनका भी Yes. रोजगार, आप उसको भी सब्जी बेचने का मौका देना चाहिए। और खास करके नेशनल हाईवे में कल कोई दुर्घटना हो जाएगा, कोई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, किसी दुकान, वो जो वेंडर है जो हमारा हाईवे का सामने में है, उनका गाड़ी को उड़ा दिया, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, who will take responsibility? Because the government has to be take care that the public safety is their priority. That's why I request the state government, please look into the matter immediately. क्योंकि I quote, I write the letter that let Bakin Partinji says, in Arunachal is a land of kushi kushi. This is true now. Itanagar is a smart city. Itanagar is a smart city. Now it's become a dumping ground of the garbage. I agree with you कि कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट एरिया है वो डेजिग्नेटेड प्लेस पे होना चाहिए, सो दैट ट्रैफिक जाम्स ना हो, अनफॉर्चुनेट रोड एक्सीडेंट्स ना हो. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. आई हैव नो क्वेश्चंस ऑन इट. इवन रिगार्डिंग द गार्बेज पिकअप, तो कहीं ना कहीं गार्बेज पिकअप भी रेगुलरली नहीं होता है. आजकल तो डस्टबिन फ्री कर दिया हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर गार्बेजेस लेफ्ट ऑल ओवर द कॉलोनीज. और ये लॉकडाउन में तो गार्बेज तो पिकअप भी नहीं हो रहा है. ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है. Lastly, I quote. Actually, I have, there is the smart city officer. After the dissolve the municipal election, माई बाप तो है नहीं है, कोई क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई पता नहीं चल रहा है. भारत सरकार पैसा दे रहा है. आई नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. पैसा दे रहा है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई पता नहीं है. देयर इज नथिंग सिस्टमेटिक. आप सोचो, हर सेक्टर में मच्छी मार्केट है, हर सेक्टर में बकरी का मार्केट है, हर सेक्टर में सुअर बेचने वाला का मार्केट है. ऐसा होने से बीमार होगा. इसमें तो ये तो पेंडेमिक से कम नहीं है. इस चीज को गवर्नमेंट रेगुलेट करके रेक्टिफाई करना चाहिए. व्हाट मार्केट वेलफेयर कमिटी नाहरलगन इज डूइंग, व्हाट ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन इज डूइंग, what Nirjuli Market Association is doing, what Duimuk Market Association, Welfare Association is doing. I don't know. Who is heading this post? You have to look after, you have to apprise the state government. ये मेरा काम नहीं था. ये मार्केट वेलफेयर कमेटी नाहरलगन, निर्जुली, ईटानगर, दुईमुख का काम है. गवर्नमेंट को अप्राइज करने के लिए डरता क्यों है? सच्चाई चीज को बताइए. मेरा रिक्वेस्ट है, जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो मार्केट का, नाहरलगन का, निर्जुली का और द्विमुख का, रिक्वेस्ट है कि आप सिस्टमेटिक करिए और आप इसको क्लियर करिए. एडमिनिस्ट्रेशन का साथ बैठ के आप लोग जब तक कोऑपरेट नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कर पाएगा. और इसमें कोई भाई भतीजा, चाचा, नानी काका नहीं होना चाहिए. आप मार्केट प्लेस को मार्केट नहीं रखिए. जहां मच्छी बिक्री करना है वहां मच्छी बेचना चाहिए, जहां में मटन बेचना चाहिए वहां मटन बेचना चाहिए, जहां में आपका बीफ बेचना चाहिए वहां बीफ बेचना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि हर जगह में मार्केट है. क्या हो रहा है? ये ईटानगर क्या है? कैपिटल है ना, डंपिंग ग्राउंड है. जब तक आप शरीर में बदन साफ कपड़ा पहनने से नहीं होगा, आप दिल का अंदर में जो गंदगी है ना, कैपिटल का अंदर में जो गंदगी है वो साफ करिए. ईटानगर खूबसूरत लगेगा. अदरवाइज अरुणाचल स्मार्ट सिटी, ईटानगर स्मार्ट सिटी will become a dumping ground of the Arunachal, one of the dirtiest cities now. I really upset. Okay. That's why I just apprised the state government. Please, Pema Kandu ji is a young and dynamic leader. He's a very good of my friend also. Though we are not concerned about the political discussion, but I really I want to request the Chief Minister and the Chief Secretary of Arunachal Pradesh, please give immediate direction to the district administration and the call an emergency meeting with all the Market Welfare Committee of Ithanagar, Naharlagan, Nirjuli and Bandardwa to look into the matter. Otherwise, I will also start the sabji market here in everywhere in Ithanagar, Naharlagan and Nirjuli, Bandardwa. Okay. Thank you, Arunachal Meron. Thank you so much. Welcome. Okay.